السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ قابل احترام صدر مسجد حفظہ اللہ ورعاہ، محترم و موقر علماء دین، معزز نوجوانوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ ابھی امام مسجد حفظہ اللہ ورعاہ مولانا حافظ عبد الجبار عمری حفظہ اللہ نے اعلان کیا کہ یہ کوئی عام بیان کا پروگرام نہیں ہے، ایک خاص نوعیت کا پروگرام ہوگا۔ جیسے کلاس میں استاذ حاضر ہوتے ہیں اور کلاس میں طلباء کے سامنے جس سبجیکٹ کو وہ لیتے ہیں اسے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ ٹہر کر جیسے سمجھاتے ہیں، باذن اللہ وہ ہمارا انداز ہوگا۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ عشاء تک جو ہمارا یہ پروگرام ہے، آپ سے ہماری درخواست ہے آپ جڑے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، اوقات، صحت، مال، اولاد میں اللہ برکت نازل فرمائے۔ اللہ آپ تمام نوجوانوں سے، بچوں سے راضی ہو جائے۔ واقعی کوئی معمولی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں ہر کسی کا من کرتا ہے باہر جائیں، گھومیں پھریں اور اپنے ذہن کو آرام پہنچائیں، اور ایسے آرام پہنچانے والے اپمپٹ اور مینم پور میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو جو سلیکٹ کیا ہے وہ ذہن سے کہیں زیادہ آپ کے دل کو آرام پہنچانے کے لیے۔ واللہ معزز نوجوانوں اور پیارے بچوں، یہ اوقات جو آپ اور ہم دے رہے ہیں، اللہ کے پاس اس کی بڑی ویلیو ہے۔ بہت کچھ ہم دنیا کے لیے دیتے، بہت کچھ دیتے ہم دنیا کے لیے، لیکن جب دین کے لیے دینے کی بات آتی ہے نا، وہاں بہت کنجوس ہو جاتے ہیں، تھوڑا دے کر بھی اس کا جو ہے ہم حساب لیتے۔ کیا مولانا، میں اثر سے بیٹھا تھا، جیسے فائدہ ہونا ویسا فائدہ نہیں ہونا مولانا۔ ہم سوچے کہ کچھ اسنیکس میں یہ وہ ملے گا ہمیں، معمولی جو ہے چائے بسکٹ پر جو اکتفا کر دیے۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، وقت دیں اور دے کر بھی ہم گرفت کرتے ہم، اور اللہ رحم کرے ہمارے دلوں کی حالت پر۔ باہر کی زندگی میں کتنا وقت بھی برباد ہو جائے نا، یہ دل ایسا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، کبھی وہاں گرفت نہیں کرتے، لیکن شیطان باقاعدہ مجھے اور آپ کو ابھار تھا۔ بہت دیر سے مولانا بھی بولتے جا رہے ہیں، کچھ سمجھاتے جا رہے ہیں، چلو بھی باہر جائیں گے، نہیں، یہاں تھوڑا سنبھالنا انشاءاللہ، اپنے آپ کو سنبھالیں گے نا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اور باذن اللہ یہ کلاس صرف اردو میں نہیں ہوگی انشاءاللہ، درمیان میں اہم باتیں ہم تمل زبان میں بھی کہیں گے آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ شاید ہماری اردو اتنی سمجھ نہ پائیں تو تمل سمجھ لیں انشاءاللہ، تو تمل زبان کا سہارا بھی ہم انشاءاللہ ہم لیں گے۔ இந்த அமர்வில் باذن اللہ 3 முக்கியமான தலைப்புகளின் கீழ் உங்களுக்கு மத்தியில் சில முக்கியமான கருத்துக்களை இன்ஷா அல்லாஹ் நான் பகிர்ந்து கொள்வேன்। முதலாவது சுப்ஹான் அல்லாஹ், அகீதா, கொள்கை, तौहीद। वल्लाही ये जिंदगी इसी पे कायम है, ये कायनात जो बनी है ना इसी पे कायम है, तौहीद पे कायम है। तो इस पर इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी, क्योंकि हम जानते हैं वो सही मुस्लिम की वो हदीस, शायद आप में से बास के जहन में वो हदीस होगी। कौन सी हदीस?
جب اس روئے زمین میں اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے ایک مومن بھی اس کائنات میں ہے، یہ دھرتی باقی ہے، یہ آسمان و زمین کا نظام باقی ہے۔ جب اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا قیامت کے ہنگامے شروع ہو جائیں گے۔ இரண்டாவது முக்கியமான தலைப்பு, எந்த மஸ்ஹபை எந்த மன்ஹஜை நாம் பின்பற்ற வேண்டும், நாம் பின்பற்றக்கூடிய வழிமுறை என்ன? நாளை மறுமை நாளில் அபூர்வ வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய பாதை இது எது? 4 ஐம்மாக்கள் அவர்களுடைய சுபஹான் அல்லாஹ் மன்ஹஜ், அவர்கள் எந்த வழிமுறையை பின்பற்றினார்கள்? நாம் இன்றைய காலத்தில் குறிப்பாக குழப்பங்கள் நிறைந்த இந்த காலத்தில் எந்த வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெளிவான முறையில் உங்களுக்கு மத்தியில் நான் எடுத்து வைப்பேன் இன்ஷா அல்லாஹ்। மூன்றாவது தலைப்பு இன்ஷா அல்லாஹ் இறுதி அமர்வில் தொழுகை மற்றும் தூய்மை, இந்த 2 தலைப்புகளின் கீழ் இன்ஷா அல்லாஹ் சில முக்கியமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வேன்। बारकल्लाहु फीकुम। चलिए सबसे पहले हम अकीदा और तौहीद को हम लेते हैं। सब हमारे साथ है ना? कौन हमारे साथ नहीं है? आप हमारे साथ नहीं हैं। कौन हमारे साथ नहीं है? तो ये ऐसा कर रहे थे, है क्या नहीं? अल्लाह आपसे राजी हो जाए बेटे, माशाअल्लाह। इतनी छोटी उम्र माशाअल्लाह, देखिए इतनी बड़ी बात है। हमारी उम्रें पता नहीं कहाँ जो है गुजर गई इस उम्र में, लेकिन सुबहानअल्लाह देखो ये जो है ब्राइट फ्यूचर के बच्चे हैं, यही जो है मीनमपुर को संभालने वाले हैं इंशाअल्लाह। यही आगे चलकर तौहीद को इंशाअल्लाह इस सरजमीन में गाड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह। तौहीद के झंडे यही गाड़ेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं के जरिए से जो है पूरी बस्ती मीनमपुर में जिस घर में बिदात है, शिरक है, उसका खातिमा अल्लाह इनसे करवाएगा। ठीक है ना जी। हमने कहा कि अकीदा, सबसे पहला सवाल क्या है कि अकीदा जिसे हम तौहीद कहते हैं, अकीदा और तमिल में उसे कोल्गई बोलते हैं। ஒவ்வொரு மனிதனின் ஒரு கொள்கை இருக்கும், கொள்கை இன்றி இந்த வாழ்க்கை கிடையாது। எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொரு மனிதனின் ஒரு கொள்கை இருக்கும்। அந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வான்। तो गोया के अकीदे के बगैर आप जिंदगी को तस्वुर नहीं कर सकते। और अकीदा 2 तरह का है हमारे पास, टाइप्स ऑफ अकीदा। अकीदा கொள்கையின் வகைகள் 2 வகைகள்। अकीदा की 2 किस्में हैं, एक सहीह अकीदा और एक गलत बातिल बेहुदा अकीदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आने से पहले दुनिया में इंसानियत गलत अकीदे पे थी। सही अकीदे पे रहने वाले उंगलियों पे गिन सकते हैं, सही अकीदे पे रहने वाले उंगलियों पे गिन सकते हैं जो दीन इब्राहिम पे कायम थे। वरना हमारा अकीदा क्या है कि जितनी किताबें नाजिल हुई अल्लाह के नबी आने से पहले तक, वो सारी किताबें बदल दी गई। नबी मूसा पर तौरात नाजिल हुई, नबी ईसा पर इंजील नाजिल हुई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर चंद सहीफे नाजिल हुए, ये सारे बदल दिए गए। तो अल्लाह ताला नबी के जरिए सही अकीदा क्या है, हमारा बेसमेंट, हमारी बुनियाद, अडिपड़ई, सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने नबी के जरिए बयान किया। तो आज भी आप देख लीजिएगा, ताज्जुब क्या है मालूम आपको? एक मैं ताज्जुब वाली बात बताऊं आपको। ताज्जुब वाली बात यह है, जिसके पास गलत अकीदा है उसे सही अकीदे की तौफीक नहीं मिली, और जिसके पास सही अकीदा है उस सही अकीदे की हिफाजत की तौफीक नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए, आप कितने अफसोस की बात है ये। अरे अल्लाह के बंदो, दुनिया में अरबों खरबों की आबादी है,
اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب کو جو ہے یہ صحیح عقیدہ دیا نہیں ہے، سلیکٹڈ پیپلز ہیں، یہ ہے کیا نہیں؟ تیرن تڑکپٹا منیدرگل، سبحان اللہ، ہاں اسے صحیح عقیدہ، اسے صحیح عقیدہ، اسے صحیح عقیدہ۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہونا؟ اس کی حفاظت کرنا نا۔ کہاں دوستوں کرتے ہم؟ آپ گھر گھر کے مسلمان سے پوچھیے، آپ اس گھر کی عورت سے پوچھیے، بیسک نالج پوچھیے آپ، واللہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، افسوس یہ ہے بعض دیہات اور گاؤں میں بسنے والے اور بعض سٹی میں بزی لائف گزارنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ اس کا معنی معلوم، نہ اس کا مطلب معلوم، نہ اس کے تقاضے معلوم، نہ اس کے کنڈیشنز معلوم، اور پھر بھی بولتے کہ مولانا میں مسلمان ہوں۔ مسلمان جو ہے دو جگہ پہ نظر آتے ہیں، شادی ہوئی تو لگتا کہ ہاں بھائی نکاح پڑھا رہے ہیں، مسلمان کی شادی ہے، اور انتقال ہو جائے تو جنازے کو دیکھ کے لگتا ہے ہاں بھائی یہ مسلمان کی شادی ہے۔ اور اللہ رحم کرے ان دونوں میں بھی ہم نے دین کو نظر انداز کر دیا۔ نکاح کو نکاح کی حد تک رکھتے ہیں، نکاح کے بعد اسلام اور دین کا لباس اتار کر ایک دلہا اور دلہن جاتے شادی خانے کو۔ اب دیکھ لو آپ پریکٹیکل ہماری لائف کیسی ہے بول کر، اور پھر ہی بولتے عقیدہ ہے، پکے ہم عقیدہ، کیا عقیدہ ہے؟ ارے دوستو عقیدے کا اثر آپ کی شادی میں نظر آنا۔ இந்த கொள்கையின் தாக்கம் உங்களுடைய சுப்ஹானல்லாஹ் அன்றாட வாழ்க்கையில் சுப்ஹானல்லாஹ் வர வேண்டும்। கொள்கையின் ஒரு தாக்கம் இருக்கின்றது, அந்த தாக்கம் உங்களுடைய சுப்ஹானல்லாஹ் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்। அந்த தாக்கங்கள் எங்கே? சஹாபா பெருமக்களின் வாழ்க்கை நீங்கள் புரட்டி பாருங்கள்। அவர்கள் இந்த கொள்கை ஈமானை அவர்கள் மனதால் ஏற்றுக்கொண்டார்கள்। அவர்கள் இந்த ஈமானின் தாக்கம் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையிலும் ஏற்பட்டது, இந்த ஈமானின் தாக்கம் அவர்களுடைய வியாபாரத்திலும் ஏற்பட்டது, இந்த ஈமானின் தாக்கம் அவர்களுடைய சுப்ஹானல்லாஹ் திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டது, இந்த ஈமானின் தாக்கம் பல வாழ்க்கையின் துறைகளில் ஏற்பட்டது இல்லையா? देखो अकीदा है, लेकिन अकीदा क्या है नहीं मालूम हमारे पास। अब चलिए सबसे पहले अकीदे से मुराद हमारी क्या है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसमें देखिए मैं जो माने बताता हूं आपको, आप समझेंगे कि क्या मौलाना इतना सब कुछ है क्या इसमें? अरे मेरे भाई समंदर है ये, कडल समंदर है ये। सिर्फ माना बोल के हम चले जाते हम, लेकिन हम थोड़ा देखना, गौर करके देखना उसमें, और ये जो हम पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से हम जोड़ना इंशाअल्लाह। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ा फास्ट तो नहीं बोलता हूं मैं, फास्ट बोलता हूं लेकिन रुकाइए मुझे। जैसा कि इमाम साहब अल्लाह ज़ाखिर ने कहा, आप जो है कामयाब तालिब इल्म कौन है मालूम? जो उस्ताद की जबान को दरमियान में ब्रेक देना, ऐसा आज बैठ के सुनते रहते, बोलो मौलाना बोलो, आप बोलो हम सुनते है कि नहीं? ये हकीकत में ये कामयाब उस्ताद, कामयाब जो स्टूडेंट नहीं है, दरमियान में बोलना। हजरत एक डाउट मुझे, आप क्या कि दरमियान में बोले ना, वो ताकम का तो क्या हो, ऐसा पूछे तो हमें खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा पूछेंगे आप, माशाल्लाह भाई आप सुनते हैं आप, वरना अक्सर हमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह शेख जानते ज़माने से टीचिंग फील्ड में हैं, खाली अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसे साइकोलॉजी बोलते हैं, नौज़ुबिल्लाह गैब नहीं है कि नहीं? गैब नहीं जानते, दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता है, हत्ता कि इवन हमारे नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की जो बातें अल्लाह ने अपने नबी को बताई ना, बस वही की रोशनी में वही बातें आपने उम्मत के हवाले की, वरना अकीदे में गुमराही है ये। अगर कोई ये समझे कि नऊज़ुबिल्लाह फुला वली, फुला नबी, फुला बुजुर्ग, फुला बड़े आलिम, फुला बड़े दीनदार गैब जानते हैं, अल्लाहुल मुस्तआन, हमारा अकीदा और हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। क्यों? कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। आसमान और जमीन में अगर कोई गैब जानता है सिर्फ अल्लाह जानता है। साइकोलॉजी एक है, चेहरा देख के पढ़ लेते हैं, आप यहाँ हैं या ग्राउंड में हैं, आप यहाँ हैं या जो है सिंजी के बाजार में हैं, आप अक्सर से बैठे रहते, बहुत ज्यादा माशाल्लाह, हम समझना कितना अच्छा सुन रहे ना माशाल्लाह,
सवाल करते ही क्या मौलाना सवाल तभी जो है उनके कान और उनका दिमाग जो हमारी तरफ आता हो। बात समझ में आती है जी। கைப் கதம் மறைவானவற்றின் மீது நம்பிக்கை கொள்வது, அதாவது மறுமை நாள் இது நமக்கு தெரியுமா? நாளை இந்த நொடிக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியுமா? வருங்காலத்தை பற்றி பேசுவது கைப், ஈமானை பற்றி பேசுவது கைப். கைப் என்றால் அதாவது மறைவானவற்றின் மீது நம்பிக்கை கொள்வது. சிலர் கூறுவார்கள் உங்களுடைய வருங்கால வாழ்க்கை இப்படியெல்லாம் நடக்கும். எப்படி ஜி? எனக்கு தெரியும். அல்லாஹுல் முஸ்தஆன். நீங்கள் குர்ஆனை புரட்டி பாருங்கள். குர்ஆனுடைய இரண்டாவது அத்தியாயம் எது? कुरान की दूसरी सूरत कौन सी? आप बोलो, चारों में से बोलो। कुरान की दूसरी सूरत कौन सी? नहीं, वो दूसरा जो ये नहीं पा रहा हो। दूसरी सूरत कौन सी जी? आप बोलो, माशाअल्लाह बोलो। सूरह फातिहा पहली सूरत जी। दूसरी सूरत कौन सी? हाँ, बकरा। माशाअल्लाह, अहसनत या अखी। सूरतुल बकरा आप तरतीब से देखेंगे, आप पहली सूरत फातिहा, दूसरी सूरत बकरा। अब बकरा पढ़ेंगे तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। उसके बाद पढ़िए அல்லதீன யுமினூன பில் கைப்। இறையச்சம் உள்ளவர்கள் யார்? அவர்களின் முதல் பண்பு அல்லதீன யுமினூன பில் கைப், இறையச்சம் உள்ளவர்கள், பயபக்தியை கொண்டு வாழக்கூடிய மக்கள் யார்? அல்லதீன யுமினூன பில் கைப், அவர்கள் மறைவானவற்றின் மீது நம்பிக்கை கொள்வார்கள். முதல் பண்பு मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाले। उनकी पहली सिफत क्या? गैब पर ईमान उनका, कि अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर कोई ये दावा करता है मैं गैब जानता हूं, वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है। हरगिज़ कोई गैब नहीं जान सकता अल्लाह के अलावा। हमारा इतना मजबूत अकीदा है। तो बहरहाल ये देखिएगा आप, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी से हम मुसलमान हुए, इसी से हमारी एक पहचान बनी, अड़यालम पहचान हमारी क्या है? सुबहान अल्लाह, हम इस कलीमे को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात क्या, अगर मैं आपसे पूछूं बेटे आप उठकर इसका मीनिंग बताओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोलकर हमें खामोश आगे बढ़ जाते। नहीं, पहली गलती होती है। अल्लाह के सिवा माबूद नहीं कैसा? आप बाहर निकलते ही कोई गणेश की पूजा कर रहा है, कोई लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, तो पूजा तो सबकी करते हैं ना। तो माबूद हैं, आप उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उलमा ने कहा, गौर से सुनो नौजवानों, बच्चों, ला माबूदा बिहक्किन इल्लल्लाह, इस रूए जमीन में अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। ऐसी जात जो इबादत के लायक है, जो जात इबादत के लायक है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी के लिए हर इबादत को बजा लानी चाहिए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है। और उलमा ने यहां बहुत बेहतरीन बात कही। மார்க்க அறிஞர்கள் இந்த கலிமாவின் கீழ் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை அவர்கள் பதிவு செய்கின்றார்கள். முதலாவது என்ன, உங்களுக்கு தமிழ் ஈஸியா இல்லைன்னா ரோமன் இங்கிலீஷ் ஈஸியா? தமிழ் உங்கள் அனைவர்களும் தெரியுமா? कौन सी जबान में मैं बोर्ड में लिखूं? तमिल में लिखे तो आसान है ना, इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। இரண்டு முக்கியமான கருத்துக்களை, விஷயங்களை பதிவு செய்கின்றார்கள் மார்க்க அறிஞர்கள். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் கீழ் இதனுடைய அடிப்படையில் வரக்கூடிய இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள். ஒன்று தஹ்லியா, இரண்டாவது தஹ்லியா. ஒன்று தஹ்லியா, இரண்டாவது தஹ்லியா. புரிகின்றதா? உங்களுக்கு புரிகின்றதா? சரி, வாருங்கள் பார்க்கலாம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று.
தஹ்லியா என்றால் விட்டு விடுவது, தஹ்லியா என்றால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது. தஹ்லியா என்றால் என்ன? விட்டு விடுவது. तहलिया என்றால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வது. तहलिया का मतलब क्या है? छोड़ देना, छोड़ो जी इसे. क्या मतलब छोड़ो जी इसे? मतलब पकड़ो ना उसे, दूर रहो उससे, इसे बोलते तखलिया. और दूसरा क्या? तहलिया. तहलिया का मतलब क्या? उसे अपनाना, आप उसे आप जो है सेलेक्ट करना, लेना, दिल से लेना, जिंदगी से जोड़ना, ये सब माना तहलिया में आता. अब मैं आपको समझाता हूं. सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो कलीमा सेलेक्ट किया है, देखो, ला इलाह पहले कहा, बाद में इल्लल्लाह कहा. अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं, पहले आप शिरक को छोड़ना. नहीं मौल साहब, मैं शिरक के साजिश में मुसलमान बनूंगा. कहां से आप मुसलमान? बात समझ में आ रही है? पहले छोड़ो जी. क्या छोड़ो? शिरक छोड़ो, बुत परस्ती छोड़ो, जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं वो कुफर छोड़ो, और जो गलत अकीदा है आपकी जिंदगी में, अलग अलग औलिया को लेकर, अंबिया को लेकर, फरिश्तों को लेकर, नेक लोगों को लेकर, पहले वो छोड़ना. उसे बोलते तखलिया. छोड़ने के बाद अब हमारा जहन ब्लैंक हो गया. मसलन जो है, आपका नाम क्या बेटे? मोहम्मद सालिम. बारकल्लाहु फीक या सालिम. सालिम साहब के जहन में, गोया के सालिम साहब का जहन जो होता है ना, एक ब्लैक बोर्ड, उसमें आप लिखते आप. अब एक इंसान के जहन में जो है कई बातें रहती. अब मसलन जो है, सालिम साहब के जहन में, मैं दोपहर में खाना खाया, सुबह में रोटी खाया, कल शाम मैं जो है बॉल में खेला, और मैं जो है फलां बच्चे को मारा. कितनी की बातें हैं उनके जहन में, है नहीं? करे नहीं तुम्हें कल मारे नहीं किसी को? नहीं मारे, माशाल्लाह अच्छे बच्चे तुम्हें, ठीक है ना? ये जहन में आप डिलीट कर दिया. मैं अब डिलीट कर दिया तो अब उनका जहन क्या हो गया? खाली ब्लैंक, कुछ भी नहीं है उसमें. अब करना क्या? अब फिल करो उसमें. क्या फिल करो? तौहीद को फिल करो, सुन्नत को फिल करो, इबादत का जो जज्बा है उसे फिल करो. तब हमें बनते जी. याद रखो आप, मोस्टली हमारे अंदर क्या खराबी है जानते? अब फॉर एग्जाम्पल जो है, देखिए गौर से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है नौजवानों के लिए. एक नौजवान मोबाइल का बिल्कुल एडिक्ट हो चुका, आदी हो चुका है, एकदम उसका गुलाम हो गया है. वो सोशल मीडिया विन अडिमई, गुलाम बन गया है. अब उसे रोकना चाहते आप, भाई फिल्म देखो ना, को ना, ड्रग्स का इस्तेमाल मत करो ना, बीड़ी सिगरेट मत पियो ना, आपकी बात में कुछ वजन है, आपकी बात को सुनता है बंदा, माशाल्लाह कबूल किया, ठीक है हजरत, ठीक है मेरे भाई, मैं छोड़ दूंगा. यहां आप कामयाब नहीं, माफ करना, क्योंकि आप जो है एक बुराई से रोके उसे, लेकिन गलती कहां करे आप? गलती आप गलती से रोकने के बाद सही रास्ता बताए नहीं उसे. नुकसान क्या होगा? यहां वो ड्रग्स से निकलकर आगे किसी लड़की से गलत ताल्लुकात में कायम हो जाता हो, वो जिना है. आपने ड्रग्स से निकाला, जिना में फंस गया, जिना से निकाला, शराब में मुलविस हो गया, शराब से निकाला, जुआ में चले गया, जुआ से निकाला, लोगों पर जुल्म करने लगा. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है हमारा? हम इस पर तो अमल करते माशाअल्लाह. मसलन जो है, यहां अल्लाह नजर बस से बचाए, जितने नौजवान हैं, अब एक इरादा बना आपका, चलिए मौलाना अपने सर्कल को मैं बदलता हूं. बदलने का हमारा क्या सिर्फ यहां तक ही होता हमारा, इसे हम नजरअंदाज करा देते. इसे ये माशाल्लाह अमल करते आप, सामने वाले को बीड़ी सिगरेट से रोक डालते आप, लेकिन नुकसान क्या होता? बीड़ी सिगरेट से रोका आपने, उसके बदले में क्या तुम्हें सही रास्ता बोलो ना उससे, क्योंकि उसकी जबान जो है खा 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 के आदत हो गई है, उसका जहन काम कर 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 के आदत हो, उसके जहन को आदत हो गई है. अब उससे आप मुकम्मल बचाने के लिए क्या तुम्हें करना? वो करने के लिए क्या करना? सही रास्ता बताना. जो मोबाइल की जिसे आदत थी उसे कुरान से लगा देना आप, जिसको शराब खानों की आदत थी उसे मस्जिद से जोड़ देना आप, जिसको गाली गुलोज की आदत थी उसकी जबान को आप सुबहान अल्लाह, अल्लाह के जिक्र से जोड़ देना आप, जिसको हराम कमाने की आदत थी उसे हलाल रास्ता बताना आप.
خالی حرام راستہ چھوڑ ڈالو بولے تو نہیں ہوتا. حرام راستہ چھوڑتے ہیں تو حلال راستہ بھی بتاؤ نا. آپ کال کرو بٹھا کے, بھائی آپ کی یہ کمائی معاف کرنا, پورا حرام ہے میرے بھائی, اللہ کے واسطے اپنی آخرت برباد مت کرو نا, اللہ کے واسطے آپ کی جو ہے آپ کے جنریشن کو آپ برباد مت کرو نا. ٹھیک ہے, تو وہیں پر بیٹھ کر آپ کسی کو کال کیا, اللہ نے آپ کو سورس دیا کہ بھائی ہمارے بستی میں ایک اچھے ہیں نوجوان, ماشاءاللہ اچھی صلاحیت ہے, ڈگری ہے, بہت کچھ کام کرنے کا جذبہ ہے, آپ کی کمپنی میں کوئی ویکنسی ہے تو دیکھو نا. اللہ اکبر, اللہ خوش رکھے آپ کو. حرام سے نکالا آپ نے, حرام ایک کیچڑ ہے اس سے نکالا, اور حلال کی پاکیزہ ندی میں آپ نے اسے چھوڑ دیا. یہ اصل کرنا ہے ہم کو کام, انشاءاللہ کریں گے نا معزز نوجوانوں. دیکھیے وہی یہ کلمے کا پیغام ہے, یہ میں اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں دے رہا ہوں. میں இந்த கலிமாவின் மூலம் பெற்ற ஒரு முக்கியமான சுபஹான் அல்லாஹ் உபதேசம் இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் அந்த தவறான விஷயத்தை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள், அதன் பிறகு அந்த சஹீஹான பாதையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். देखिए आपने जो है तखलिया का अमल किया, सामने वाले को शिर्क से रोका, तौहीद का इंट्रोडक्शन कराइए. सामने वाले को बिदात से रोका, सुन्नत का इंट्रोडक्शन कराइए. सामने वाले को आपने हराम से रोका, आप उसे हलाल का रास्ता बताइए. सामने वाले को आपने गाली गलौज से रोका, उसे जिक्र का रास्ता बताइए. सामने वाले को आपने बाजार से रोका, उसे मस्जिद का रास्ता बताइए. बुरी दोस्ती से निकाल दिया आपने. अब करना क्या? अच्छे दोस्त कौन भाई? अच्छे दोस्त से लगाओ ना उसे, क्योंकि अल्लाह ने दोस्तों हमारा जो नेचर बनाया है ना, ऐसा ही बनाया है. हम किसी ना किसी इसमें मशगूल रहेंगे जरूर, वरना इंसान दीवाना हो जाता. अब देखो अब मसलन बाज लोगों के बारे में, किसी से भी मिलते नहीं मौलाना. अब देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो उसकी जिंदगी को, डिप्रेशन में रहेगा बंदा वो. अब देखो आप या तो सही दोस्ती रहना या गलत दोस्ती रहना, तब जिंदगी सही चलती. सही चलती किस माने में? डिप्रेशन और दिमाग सब खराब नहीं होता, ईमान तो खराब होता बुरी दोस्ती से, लेकिन ऐसे सब प्रॉब्लम नहीं आते. लेकिन एक इंसान के बारे में आप इंट्रोडक्शन कराते, आप मौलाना किसी से मिलते नहीं, बस सर को ऐसा नीचे रख लग जाते. ये तारीफ की है, ये तारीफ नहीं है. अरे उसकी हिफाजत करो, उसके अकल की हिफाजत करो, वरना वो बंदा सोच 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 के क्या होगा, दिल जो है गमों का पहाड़ बन जाएगा. होना हमारे आसपास सर्कल में हमेशा एक दूसरे को मिलना. हमें अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान मिलते, क्या मेरे भाई अब्दुर्रहमान क्यों आप नजर नहीं आ रहे हैं, क्या परेशानी है आपको, खुलकर पूछिए. ऐसे लोग होना हमारे पास. अल्लाह जिंदगी इसीलिए मुख्तसर जिंदगी दोस्तों, मुख्तसर जिंदगी. आपकी बस्ती के एक मोहतरम आलिम हाफिज रहिमहुल्लाह का इंतकाल हुआ. कौन जी? शेख तनवीर, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे. अल्लाह ताला उनकी आखिरत के तमाम मराहिल को आसान फरमाए, जन्नत में अल्लाह ताला उन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए. आप सुबहान अल्लाह जानते हैं ना, अभी भी शेख का चेहरा हमें याद है. हजार दिल में जो है परेशानी सही, मुस्कुरा के सामने वाले का दिल जीत लेते थे. ये कौन कर रहे हैं आज मालूम आपको? कौन कर रहे हैं मालूम? अफसोस है, ईसाई मिशनरियां कर रही हैं आज. क्रिस्तुवर्गल अल्लाह पादुगाक्का वेंडुम. उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से क्या करते, सामने वाले को ईसाई बना लेते हैं. ये हमारे नबी की सुन्नत है ये हकीकत में. इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया जानते आप? कितना बड़ा सीक्रेट है देखो उसमें. अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तहकीरन्न मिनल मारूफि शैआ वलो अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्किन. अरे मेरे भाई, किसी नेकी को हकीर मत समझो. आप सामने वाले से मुलाकात करते हुए मुस्कुरा के मिलते ना, आप ये मुस्कुरा के मिलना भी सदका और नेकी है. अल्लाह अकबर. ऐसा होना चाहिए हमारे पास. जिसके पास सही अकीदा है ना, वो बिल्कुल ऐसा रहता है, रफ रहते एकदम मुस्कुराते भी नहीं कभी भी. क्या भाई, मैं सही अकीदे का हूं. मैं क्या नऊजुबिल्लाह है. अरे मुस्कुराओ मेरे भाई. अकीदा मुस्कुराहट की तालीम देता है. अकीदा सामने वाले के दिल में सुभान अल्लाह आपका सही अकीदा मुंतकिल हो, इसकी ये तालीम देता है. हमने इस सब को भुला दिया आज. और इसीलिए आप देख लीजिए, जिसके पास सही अकीदा है ना, उसके पास मौलाना अखलाक नहीं है. मौलाना
یہ ہماری جو ہے صف ہے دوستو، اس لیے ہم یہ بات ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے ہمیں. اللہ نے ہمیں منہج دیا، اتنی بہترین مسجد ہے ہمارے پاس. واللہ اٹھنے سے پہلے عہد کرو، آپ یہاں جو محترم علماء ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ اس پوری بستی کو توحید سے جوڑنے کی صحیح انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگ. یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں رہنا ہمارے پاس، ہاں کیا کہ بلا دیے پونگل کی چھٹی آئے بیٹھے چلے گئے، یہ واللہ فارملٹی نہیں ہے. اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کے محترم علماء کو، آپ کے محترم ذمہ داران کو، ان کی تڑپ ہم بول نہیں سکتے الفاظ سے. اتنی تڑپ رکھنے والے ہر مسجد کو نہیں ملتے دوستو، ہر بستی کو نہیں ملتے ایسے. جانتے ہیں آپ، آج ہم سے عقیدہ چھیننے والے ہیں، عقیدہ دینے والے آج نہیں ہیں ہمارے پاس. آج ہماری زندگی سے اخلاق کو چھیننے والے ہیں، ہماری زندگی کو برباد کرنے والے ہیں. کوئی ہماری زندگی کو آباد کرنے والا آج نہیں ہے. اللہ کو گواہ بنا کے ہم کہتے ہیں، یہاں جو بیٹھے احباب اور ذمہ دار ہیں اور اس مسجد سے جڑے جن کا تعلق ہے، سب کی یہ فکر ہے مینم پور اور اپم پٹ کے نوجوان جن نیک مقاصد سے اس مسجد کی جو ہے تعمیر ہوئی ہے، اس میں آپ لوگ حصہ بنیں گے نا انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. دیکھیے تخلیہ چھوڑنا، اس کے بعد کیا ہے تخلیہ اپنا یہ. اسی لیے سبحان اللہ شریعت کی پہلی شرط کیا ہے؟ آپ جو ہے شرک چھوڑ کر توحید میں آنا. آپ یاد رکھنا، ان بتوں کی گندگی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو موحد اور مسلمان مت کہیے گا. ایسا نہیں ہوتا ایسا. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ کا معنی کیا؟ دیکھو، نہیں ہے کوئی معبود برحق، یہ نہیں ہے تخلیہ، نہیں ہے شرک، نہیں ہے کفر، نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے. چھوڑو تخلیہ، اپناؤ کسے؟ الا اللہ. اللہ کو اپناؤ جی، توحید کو اپناؤ، دین کو اپناؤ، رسول کو اپناؤ، اخلاق کو اپناؤ، اچھی عادتوں کو اپناؤ، اپنی آخرت کو بنانے کے سامان کو اپناؤ. یہ سب الا اللہ میں ساری باتیں. اب یہ دو بھی آنے کے لیے علماء 7 کنڈیشن بیان کیے، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو ہے کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ، کنڈیشنز آف کلمہ. یہ مکیمان نبندنیگل ان دا کلماوین، یہ 7 جو ہے اہم شرطیں ہیں. یہ اگر شرطیں آپ کے پاس کنڈیشنز آ جائیں، واللہ یہ 2 بھی آسان ہماری زندگی میں. پریکٹیکل لائف میں کیا مشکل ہوتا جانتے؟ پریکٹیکل لائف میں کبھی یہ مشکل ہوتا، کبھی یہ مشکل ہوتا. کبھی حرام چھوڑنا بہت مشکل ہوتا، کبھی سنت کو اپنانا بہت مشکل ہوتا. دیکھو آپ، نہیں مولانا میں نہیں، میرے بس کی بات نہیں، میں ایسا میرے کپڑے ہمیشہ ٹخنے کے نیچے چلیں گے. کب تک میرے بھائی؟ خبر تک. کفن میں میرے بھائی ہمارے جو ہے پیر لپٹتے سو، کفن کے کپڑے میں جو ہے ہمارے پیر جو ہے لپٹتے سو. یہاں سب نہیں، یہاں جو ہے ایسا اوپر رہنا، یہاں پر آپ کی جو ہے ٹخنے نظر آنا. ہاں ماشاءاللہ، یہ ہے دیکھو کچلی، آپ نے کچلا اپنی اس پرانی عادت کو. مولانا میں ارادہ کرتا ہوں، جس سنت سے میری زندگی دور تھی نا، اب اپنے آپ کو سنت سے قریب کروں گا میں، یہ تخلیہ ہے. اور جس گناہ میں مبتلا تھا نا، اسے میں چھوڑوں گا، یہ تخلیہ ہے. تبھی تو ہم بنتے ہیں دوستو، ورنہ ایسی 1000 مجلسیں بھی بیکار ہمارے لیے، کوئی فائدہ نہیں. لیکن سوچو آپ، اب یہاں بولتے بولتے مجھے سوچنا چاہیے میری زندگی کی خامیاں کیا ہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. یہاں جو ہے نا رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں، مسجد میں ہدایت کی بارشیں برس رہی ہیں. فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے. اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئے گی معلوم. اللہ اکبر. چھٹی کے موسم میں سب لوگ باہر مزے لے رہے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی ایمان کو بوسٹ، اپنی ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. آپ اللہ کو یہی چیز پسند آتی ہے. یاد رکھو، آپ جب نفس سے مقابلہ کر کے آپ آتے نا، کبھی اللہ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے. نارمل کیا بھی کام نہیں تھا، اگر بیٹھ گئے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. سب کچھ چھوڑ کے آیا آپ. کوئی آپ کے دوست روک رہے تھے، گھر والے روک رہے تھے، آپ کا دل روک رہا تھا، بہت ساری چیزیں. سبحان اللہ، ہم راستے میں آ رہے تھے،
इतनी भीड़, इतनी जो है यानी लोगों के दरमियान हलचल। आज तो है 14 जो है यानी जनवरी का मतलब पोंगल है आज, लेकिन सुभान अल्लाह वही सोचते हुए आ रहा था, सफर है। अल्लाह ताला जो दुआ को कबूल फरमाए आप नौजवानों के हक में। ए अल्लाह इन नौजवानों से राजी हो जा जो आज के दिन सिर्फ तेरी खातिर आज प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह अकबर। कोई और यहाँ पर मैंने कहा ना कुछ भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ हाजिर होंगे तो आपको कुछ बड़े बड़े जो है पैसे मिलेंगे क्या आपको? कुछ भी नहीं मेरे भाई, आप अल्लाह के वास्ते आए माशाल्लाह यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जो हिदायत के फैसले हो रहे हैं ना, उठने से पहले उसे अपने दिल से जोड़ लेना इंशाअल्लाह। आइए वो 7 चीजें बताते हैं। देखो आपके अंदर कितनी चीजें हैं वो 7 चीजों में से। ला इलाहा इल्लल्लाह में 7 चीजें हैं। पहली चीज क्या है जो जरूरी है, कंडीशन है ये कि आपके पास यानी कल्वी इल्म होना चाहिए। इल्म, अल्लाह ने इल्म का हुक्म किसे दिया? मुझे और आपको नहीं, सबसे पहले नबी को हुक्म दिया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले जानो आप ला इलाहा इल्लल्लाह किसे बोलते है क्या नहीं? ये इंपॉर्टेंट है, पहली कंडीशन है ये कल्वी, उसे आप इल्म बोलते हैं। आप முதலில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கத்திற்கு உண்மையான தகுதியானவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று सुभान अल्लाह ये मुकम्मल अकीदा अपने दिल में लेना। फ़अलम, जानो पहले आप। अब जानने के लिए कौन मौलाना नहीं है ना अपमपट में, मीनमपुर में कौन भी, अल्लाह की नियामत है। ऐसी बस्ती भी हम जानते हैं जहां एक सही आलिम नहीं दीन सिखाने के लिए। आपके पास माशाल्लाह उलमा हैं यहाँ पर, और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मुहतरम उलमा को। अल्लाह इनको नजर बस से बचाए, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए, आला औलाद की हिफाजत फरमाए। वक्तन फ़वक्तन माशाल्लाह आपकी खातिर बाहर से उलमा को बुलाते हैं और माशाल्लाह प्रोग्राम भी करवाते हैं, है कि नहीं? तो ये इल्म जो है मस्जिद से मिलता है दोस्तों, है कि नहीं? इल्म की तकसीम मस्जिद से होती है। तो इस मस्जिद से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत इल्म मिलेगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है? नंबिक्कई, उरुदियाना नंबिक्कई वरा वेंडो। कबूल कर लिए माशाअल्लाह आप कलीमा, फिर भी शक है ये ईसाई मजहब सही क्या, ये जैन मजहब सही क्या, ये कादियानी लोग सही क्या, ये बरेलवी लोग सही क्या? नहीं दोस्तों, आप जो सही अकीदा अपनाए ना उस पर पूरा यकीन होना आपको। ऐसा नहीं होता, ऐसा शक के साथ अल्लाह कबूल नहीं करते, याद रखो। इसलिए कि ईमान की तारीफ उलमा क्या बयान करते? நாவினால் கூறுவது உள்ளத்தால் அதனை உறுதிப்படுத்துவது உங்களுடைய உடலில் உள்ள உறுப்புகளை கொண்டு நடைமுறையில் கொண்டு வருவதுதான் ईमान। 3 अहम जो चीजें ईमान में, सिर्फ जबान से बोल देंगे तो मुनाफिक भी बोले जबान से, मुनाफिक भी जबान से बोले, लेकिन दिल से जो है उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। हमारी पहचान क्या है? हम जबान से भी बोलते और दिल से भी उसका इकरार करते, और यहां तक हम काफी नहीं होते, हम साहब दिल में जबरदस्त जो है मजबूत अकीदा है। क्या मजबूत अकीदा है मेरे भाई? कहां प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आ रहा है अकीदा? वो உடலில் உள்ள உறுப்புகளை கொண்டு நீங்கள் அதை நடைமுறையில் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள்। இதுதான் ஈமான், இதுதான் अकीदा, இதுதான் तौहीद, उरुदियाना नंबिक्कई। ठीक है, आज के दौर में क्या है प्रॉब्लम? इंशाअल्लाह हमारा जो सेक्शन होगा ना, खासकर मनहज क्या है, किस मनहज को हम फॉलो करना, उसमें इंशाअल्लाह बहुत सी अहम बातें आएंगी, बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। देखिए शक आएगा जरूर, आज के दौर में तो जरूरी है। आप जो सोशल मीडिया ओपन करते यूट्यूब, उसमें कोई आलिम का बयान सुनते आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ये सही की, उन्हों सही की, इन्हों सही की। आज के दौर में कंफ्यूज बहुत ज्यादा है आज, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। बोलो ना, बोलो किसे सुनना किसे नहीं सुनना, किसको फॉलो करना किसको फॉलो नहीं करना, बहुत प्रॉब्लम होता है ना आज के दौर में जमाने में। तो शैतान की 2 मक्कारियां, शैतानिन 2 முக்கியமான பகிரங்கமான சூழ்ச்சிகள், 2 முக்கியமான பகிரங்கமான சூழ்ச்சிகள் ஷைத்தானின். முதல் சூழ்ச்சி என்ன? குழப்பங்களை கொண்டு உங்களுடைய ஈமானில் அவன் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவார்.
குறிப்பாக இது போன்ற சுபஹான் அல்லாஹ் कुलपंगल ईमान में शक आता, मौलाना ये सही कि नहीं, वो सही दिखता है, नहीं उन्होंने बहुत बोल्ड बोलते, उन्होंने बहुत आहिस्ता बोलते, है कि नहीं। आज बोलना भी एक फितना हो गया है। आज अल्लाह रहम फरमाए, माफ करना, जबान के जरिए से कितनों ने लोगों का दीन जो है और लोगों का अकीदा जो है खराब किया है कि नहीं। इसीलिए अल्लाह बोलने की कुदरत देते हैं ना, इसकी पकड़ भी अल्लाह के पास होगी, याद रखो। हमारी जबान से हक निकलना, हमारी जबान से सही बात निकलना, ये बहुत जरूरी है। आज முதல் சூழ்ச்சி ஷைத்தானின் என்ன, பல குழப்பங்களை கொண்டு உங்களுடைய ஈமானில் ஒரு பெரிய பாதிப்பை அவர் ஏற்படுத்துவார்। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, सेकंड जो है शहवत के जरिए। आज प्रॉब्लम है ना दोस्तों, மனோ இச்சையை பின்பற்றக்கூடிய எத்தனை வாலிபர்கள், எத்தனை இளைஞர்கள், அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும்। இந்த மனோ இச்சையை பின்பற்றக்கூடிய எத்தனை வாலிபர்கள் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் தவறான தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள்। இதன் மூலம் அவர்களுடைய ஈமானிற்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது। नंबिक्कई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन होना चाहिए। ये कलीमा में यकीन रहना आपको कि ये कलीमा इंशाअल्लाह आपकी आखिरत बनाएगा, आपको जन्नत में दाखिल करेगा। तीसरा क्या है, उन्मई, सच रहना। किसके साथ सच्चा रहना? आप पहले अपने दिल से सच्चा रहो। आप, हम दिल के साथ बहुत झूठे रहते हैं। हम दिल कहता कुछ है, हम करते कुछ और। भाई चलो ना, बात मान लो ना, सामने वाले की बात सहीश ना, खामोश हो जी, उन्होंने मेरे दुश्मन, उन्होंने नहीं मालूम, फलां जो है मौके पर जो है उन्होंने मेरा हेल्प नहीं करे। उन्होंने अपना कोई प्रॉब्लम रखकर दीन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं होना दोस्तों। हम क्या करना, सुबहान अल्लाह, सबसे पहले अपने दिल के साथ सच्चा रहिए आप, उसके बाद अल्लाह के साथ सच्चा रहिए, रसूल के साथ सच्चा रहिए, दीन के साथ सच्चा रहिए आप, लोगों के साथ सच्चा रहिए आप, घर वालों के साथ सच्चा रहिए आप। ये कलीमा हमें सच्चाई की तालीम देता है। सच्चाई के बगैर वल्लाही ये कलीमा ही नहीं है। आप जो है ला इलाहा इल्लल्लाह बोलें और फिर भी आप शिरक करें, अल्लाह के साथ आप सच्चे नहीं हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोलें, बिदात करें, आप रसूल के साथ सच्चे नहीं हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोलें, बीवी को जुल्म करें, आप जो है बीवी के साथ सच्चे नहीं हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोलें, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करें, आप बच्चों के साथ सच्चे नहीं हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह बोलें, अपने दिल को तन्हाई में गुनाह के हवाले कर दें, आप अपने दिल के साथ जो सच्चे नहीं हैं। आप सच्चा होना बहुत जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कंडीशन है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरना। யார் உண்மையை மட்டும் பேசுகிறார்களோ அவர்களோடு நீங்கள் இணைந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் தெளிவான முறையில் அந்த வசனத்திலே கூறுகின்றார்। உண்மை, உண்மையாக இருப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும்। நான்காவது முக்கியமான நிபந்தனை என்னவென்றால், அல்லாஹு அக்பர்। थोड़ा ये बोर्ड हल रहा है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। रेटिंग ऊपर से नीचे जा रही है पहाड़ की तरह। मनत्तु ही मई, ठीक, बोर्ड में जो है थोड़ा बैलेंस नहीं है, माफ करना। नहीं शेख, बारकल्लाह फीक, अल्लाह ज़ाहिर दे। तो समझ में आ रहा है ना आपको इंशाअल्लाह। मनत्तु ही मई, इखलास, इखलास, इखलास। वल्लाही ये कलीमा जो है हमें मुखलिस बनाता है। வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு துறையிலும் நீங்கள் இந்த மன தூய்மையோடு நீங்கள் வாழ்வதற்கு முயற்சி। இன்னமல் அமாலு பின்னியாத், பின்னியாத், பின்னியாத்। ஆரம்பத்தில் அல் அன்ஆம் எனும் சொல்லக்கூடிய அத்தியாயத்தின் ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு மத்தியில் எடுத்து வைத்தேன்। அந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் தெளிவான முறையில் கூறுகின்றான், குல், நபியே நீங்கள் கூறிவிடுங்கள், இன்ன ஸலாத்தி, நிச்சயமாக என்னுடைய தொழுகை, வனுசுகி, என்னுடைய குர்பானி, வமஹ்யாயா, என்னுடைய வாழ்வு, வமமாதி, என்னுடைய மரணம், லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன், அகிலங்களை படைத்த
அல்லாஹ்விற்காக என்னுடைய தொழுகை, என்னுடைய குர்பானி, என்னுடைய வாழ்வு, என்னுடைய மரணம் அனைத்தும் அல்லாஹ்விற்காக நான் அர்ப்பணிக்கின்றேன். அல்லாஹு அக்பர். இதுதான் மன தூய்மை. दूसरों के वास्ते कोई काम करना नहीं जी, याद रखो दीन के नाम पर. कभी क्या होता, हाँ आपके घर में जो है अब्बू बाहर रहते हैं, यहाँ से चेन्नई में रहते हैं अब्बू, अचानक घर आते ही क्या करते, पहले मस्जिद जाते आप, सुन्नत भी पढ़ते, अब्बू खुश हो जाते, माशाल्लाह मेरे बेटे देखो. और लड़ाई किसे होती मालूम, आपके जो है चचा और आपके अब्बू के दरमियान लड़ाई होती. चचा बोलते फ़ोन में, थोड़ा आपके बेटे हैं ना बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर घूम रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं. अब घर आते ही आपको देखकर अब्बू परेशान हो जाते हैं, हाँ मेरे भाई है ना हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, उनको करार नहीं, उनको ऐसा बोलते नहीं बोलते. आप क्या करते, नऊज़ु बिल्लाह, अगर आप मुखलिस होते ना, आपके अब्बू देखे ना देखे, आपके अम्मी देखे ना देखे, आपकी मस्जिद के इमाम देखे ना देखे, आप अपने आप को सही ढंग से रखते. आप ये छोनस हम आज के ज़माने में, और सही अगर आप देखें, आप ऐसे लोगों को आप उंगलियों पे गिन सकते हैं आज सोसाइटी में, जो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए काम करें. एक बात मैं आपको बता दूं, सब गौर से सुन रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं ना मेरे बेटे, आप सुन रहे हैं ना मुझे. नाम क्या आपका, क्या है, अकरम, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको अकरम. यहाँ देखो मुझे, आप देख रहे हैं मुझे आप. एक बात मैं बोल सकता हूँ, परमिशन है, नहीं है परमिशन, है परमिशन है, जज़ाकल्लाह खैर आप परमिशन देने के लिए. अब यहां मुझे गौर से देखिए आप, एक बात मैं बोलता हूं, देखो जिंदगी आप इखलास से जोड़कर देखो, जिंदगी गुजारने का मजा आएगा आपको, हकीकत में वल्लाही मजा आएगा. हमारी जिंदगी बेमजा है. क्यों बेमजा है, सब जगह जो है ऐसे नाटक करते हैं हम, कोई देख लिए तो बहुत ज्यादा, कोई नहीं देखे तो ऐसा रहते, अल्लाह रहम करना. ये क्या है जी, ये नाटक वाली जिंदगी अल्लाह को पसंद नहीं. अब बंद कमरे में भी आपको बुराई का मौका मिले, वहां तकवा की रोशनी से बुराई को जमीन में दफन करें, अल्लाह को ऐसी जिंदगी पसंद है. याद रखना आप, ऐसा पसंद नहीं अल्लाह को. लोग देखे तो चेहरा माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है आपका, माशाल्लाह फरिश्ते आ रहे हैं, घर में रहे तो शैतान है. फरिश्ते की मिसाल अच्छाई में देते हम, और शैतान की मिसाल बुराई में देते. ऐसा नहीं रहना. ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम, मन्नत तूईमै किसे बोलते जानते हैं आप, अल्लाहु अकबर. हर मकाम पर आप इखलास अल्लाह के वास्ते जियो बस. अगर मैं समझता हूं आज का पूरा प्रोग्राम एक बात पे मैं खत्म कर लूं तो भी काफी है, अल्लाह के लिए जियो मेरे बंदो, अल्लाह के लिए जियो. अल्लाह के बंदो तुम कामयाब हो जाओगे, कुछ भी नहीं है. अल्लाह के लिए जब जिएंगे आप, कभी भी आप धोखा नहीं देंगे, आप खियानत नहीं करेंगे, आप दूसरों को सताएंगे नहीं, आप अपने आप को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपने आप को खबर के लिए तैयार करेंगे, आप जन्नत के लिए तैयार करेंगे, आप अल्लाह के गैज़ और गज़ब से बचेंगे इंशाअल्लाह. तो इसीलिए हमारी जिंदगी का जो है ये समरी ऑफ लाइफ है, ये समरी ऑफ लाइफ है. ये क्या है, ये अल्लाह के लिए जियो. उसके बाद नंबर 5, नेसम, अल महब्बा. मोहब्बत किसके लिए, अल्लाह के लिए. अल्लाह की मोहब्बत दिल में होना, अल्लाह की मोहब्बत दिल में होना, सुभान अल्लाह, हर चीज आसान हमारे लिए. अभी मैंने शुरू में क्या कहा, 2 बातें, तखलिया और तहलिया. बोलो अकरम, तखलिया तहलिया, बोलो जोर से बोलो, तखलिया. बोलिए, हम आपसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं अकरम, इसलिए आपका नाम बार बार ले रहे हैं. आप परेशान नहीं होना, क्या हजरत बार बार मुझे टारगेट कर देना, आपको मैं टारगेट नहीं किया. आपको मैं माशाल्लाह जो है, आप अगर सुनेंगे ना, हाँ अकरम सुन लगी बोलकर, सामने क्या आपका नाम, फहीम साहब भी बैठे हैं. आपका नाम क्या, मोहम्मद शारिक. फहीम हो, शारिक हो, आपका नाम क्या, मोहम्मद वासिफ. फहीम, शारिक, वासिफ, हाँ अकरम सुन लगी, हम भी सुनेंगे. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं आप, है कि नहीं. आप अगर रहेंगे ना हमारे साथ, फहीम भी रहते, शारिक भी रहते, वासिफ भी रहते इंशाअल्लाह. और इनाम लेना आखिर में, इनाम लेना इंशाअल्लाह आखिर में लेंगे ना इनाम.
کچھ بھی سوال آ سکتا ہے. بہت ذہن کو ہمیشہ تازہ رکھنا. آپ عشاء تک ٹائم ہے آپ کے پاس. آخر میں سوال پوچھیں گے آپ سے. اب سب سوال پوچھتے نہیں ہم, آخر میں پوچھیں گے. جس کو یاد ہے ماشاءاللہ وہ جو انعام لے کر جائے. اور ویسے بھی امام صاحب نے اعلان کیا کہ صرف 3 ہی انعامات ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ 3 ماشاءاللہ انعام پانے والے کون ہیں. جزاکم اللہ خیر. نیسم محبت ہے نا, یہ محبت ہے دوستو اللہ کی سچی محبت. اللہ سے سچی محبت کرو, رسول سے سچی محبت کرو. یہ کلمے کا پیغام ہے. محبت کے بغیر سبحان اللہ, اللہ نے قرآن میں کیا کہا, صحابہ کو کیوں ممکن ہوا؟ شراب میں مست تھے. آج کے دور میں کہتے ہیں شراب اگر کسی کو اس کی عادت پڑ جائے نا, اس کا علاج سلوشن موت بولتے. صحابہ نے اسے بدل کے دکھایا. صحابہ, آج ہمارے گھروں میں پانی زیادہ رہتا ہے, وہاں شراب زیادہ تھی. مٹکوں میں ہم جو ہے پانی بھر کے رکھتے, وہ لوگ شراب بھر کے رکھتے تھے. کیا بات ہے, اللہ نے نازل کیا فجتنبوہ فجتنبوہ, یہ شراب حرام ہے حرام ہے حرام ہے, بچو جی. اللہ کے نبی کے پاس آ کر صحابہ پوچھے کیا, اللہ کے نبی بہت پیتا ہوں میں, ویکلی ونس اجازت دو نا, منتھلی ونس اجازت دو نا. پوچھے کیا؟ واللہ پوری ہسٹری کھنگال لو آپ, یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں, پوچھ لیجیے آپ. ایک صحابی نے بھی آ کر اللہ کے نبی سے کوئی ایکسکیوز یہ درخواست نہیں کی, اللہ کے نبی ایک مرتبہ پی لیتے ہو نا. پوچھے کیا؟ ہم اور آپ ہوتے تو امام صاحب کو, کیا امام صاحب مکمل بشناس کی, تھوڑا شادی میں پی لے سکتے گی, اس میں کر لے سکتے گی. ہمارے پاس جو ہے دین کے نام پر آفر ڈھونڈتے, ہم راستے تلاش کرتے, کون سا راستہ ملے گا بول کر. دنیا کے معاملے میں کتنا تنگ راستہ رہے تو بھی اسے اپنا لیتے, دین کے معاملے میں کتنا آسان راستہ رہے تو بھی اسے تنگ سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہم. کیا ہے دیکھو, ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت اور دین, یہ دین کیوں آیا ہے؟ مجھے اور آپ کو تنگ کرنے کے واسطے کیا نہیں. ہم راحت والی زندگی گزاریں, امن والی زندگی گزاریں. اللہ نے قرآن میں کہا نا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان والے ہیں اللہ سب سے پہلے ان کو امن دیتے جی. آج گھر گھر کا پرابلم کیا ہے, کیا نہیں ہے ہماری زندگی میں؟ امن نہیں, سکون نہیں. کما کر بھی ہم پریشان ہیں, بلڈنگوں میں رہ کر بھی ہم پریشان ہیں. ہمارے بڑے جھونپڑی میں رہ کر کرنٹ نہیں, مکسی نہیں, گیس نہیں, سلنڈر نہیں, کچھ بھی نہیں, پھر بھی ماشاءاللہ وہ آرام سے تھے, وہ صحت مند تھے. وہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, امن نہیں ہے, امن نہیں ہے, امن نہیں ہے. وہی امن اللہ نے اس میں رکھا ہے, اس توحید میں اللہ نے امن رکھا ہے, اس توحید میں اللہ کی قسم اللہ نے امن رکھا ہے. اور دوسری بات جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کی, وَهُمْ مُهْتَدُونَ, ہدایت ملے گی, ہدایت پہ رہیں گے آپ, ہدایت پہ موت آئے گی. تو 2 فائدے ہیں توحید پہ رہنے کے. اگر کوئی آپ سے پوچھے توحید پر رہنے کے فائدے کیا ہیں, 2 فائدے ہیں. پہلا امن ملے گا, اور دوسری ہدایت پر موت آئے گی انشاءاللہ. یہ رب کا وعدہ ہے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ کس کا وعدہ ہے؟ رب کا وعدہ ہے کہ آپ اگر اسلام اور توحید پہ رہیں گے نا, 2 نعمت ملے گی آپ کو. ایک آپ کو امن ملے گا, اور دوسری آپ کو جو ہے ہدایت ملے گی انشاءاللہ. ہدایت پر موت آئے گی انشاءاللہ آپ کو. اور اللہ نے اس آیت میں 2 نعمتیں ذکر کیا ہے, اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ نیسم محبت. اور ساتھ چھٹی چیز کیا ہے, آراود مکیمان نبندنئی, കട്ടുപ്പെടുതൽ, അലിൻഖിയാദ്, முற்றிலும் அல்லாஹ்விற்கு தூதருக்கு இந்த மார்க்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். கட்டுப்படுதல், இதுதான் அல் இன்கியாத். आप दावा करते कि मौलाना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, फिर आपकी जिंदगी कलीमा से बाहर रहती. जी शेख माजरत, यानी मुकम्मल शरीयत की पैरवी करना. इताअत और पैरवी का नाम கட்டுப்படுதல், இன்கியாத் है. और 7வது முக்கியமான நிபந்தனை என்னவென்றால், இறுதியாக 7வது முக்கியமான நிபந்தனை
ஏற்றுக்கொள்வது. அல் கபூல் அல் கபூல் அல் கபூல். அதை நீங்கள் மனதால் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு மத்தியில் ஏகத்துவத்தை பற்றி அழகான முறையில் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் யாராவது ஒரு அறிஞர் அந்த தௌஹீதை, அந்த ஏகத்துவத்தை, அந்த சஹீஹான அகீதாவை எடுத்து வைத்தால் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை நம்மிடம் வர வேண்டும். இன்றைய காலத்தில் முஸ்லிம்களின் பிரச்சனை என்ன? அவர்கள் கேட்கின்றார்கள், ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. सुनते हम, कहां प्रॉब्लम आता? उसे कबूल करने में बड़ा प्रॉब्लम आता. मौलाना आप जितना बोलना है बोलो, हम सुनने तैयार. लेकिन प्रॉब्लम कहां? हम ना उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अपनाने की जब बात आती है, वो एक बोलने होगा. उसके अलावा जो चाहे बोलिए आप, वो एक आप बात मत कीजिए आप. अल्लाह रहम फरमाए. इसीलिए दोस्तों, अल्लाह अकबर, सातवीं जो शर्त उलमा बयान करते हैं, ये ट्रुकुल्वद. कलीमा, हमें कलीमा का माना हम बयान किए. वनकत्तिற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं. फिर कलीमा में दो बातें हैं, एक तखलिया है और एक तहलिया है. तखलिया का मतलब छोड़ना है, तहलिया का मतलब अपनाना है. फिर अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप शिर्क को छोड़ें, गलत अकीदे को छोड़ें, गलत रस्म को छोड़ें, गलत रिवाज को छोड़ें और अच्छी बात तौहीद, सुन्नत और दीन की बात को कबूल करें, तो ये 7 चीजें जरूरी हैं. पहले इल्म हासिल करो, उसके बाद सही मजबूत आप सुबहान अल्लाह यानी यकीन अपने अंदर पैदा करो. उसके बाद सच्चे रहो. उसके बाद नंबर 4 इखलास अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह के वास्ते जीने की कोशिश करो. और 5 अल्लाह के वास्ते मोहब्बत होनी चाहिए. और छठी चीज, आप मुकम्मल फर्माबरदार बनिए आप. और 7वीं चीज, आपके पास कबूल करने, उसे अपनाने, उसे लेने की सलाहियत और वो कैफियत अपने अंदर पैदा कीजिए इंशाअल्लाह. ये 7 बातें समझ में आई? किसे समझ में नहीं आई? इसे हमेशा याद रखना. इसे हमेशा याद रखना. ये 7 बातें कभी भूलना नहीं. और सिर्फ ये नॉलेज के हद तक नहीं, जो मुख्तलिफ मिसालें में दिया इन कंडीशंस को समझाते हुए, वो कंडीशंस और जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसे अपनी लाइफ, जो प्रैक्टिकल लाइफ ही को मैं सामने रखा मोस्टली जो हम महसूस करते. तो लिहाजा वहाँ हम इंशाल्लाह अपने आप को बदलेंगे ना इंशाल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. अभी इंशाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में हम आएंगे. और भी असल सुबहानल्लाह अकीदा ऐसा है कि एक ही मजलिस में पूरे चैप्टर्स भी हम ले लें तो बोलते जाएं तो भी हाँ इंशाल्लाह. मैं तो चाहता हूं कि हमारे नौजवानों से खुलकर अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि यहाँ पर मैं कुछ ब्रेक लेकर आप लोगों से भी कुछ सुनना चाहूँगा इंशाल्लाह. अब जैसे कुछ बातें हमारे सामने आई तो आप लोग बताना कि क्या आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या आप जो है असल फेस कर रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये चीज नहीं हो पा रही है, क्यों ये काम हो रहा है. आप अगर खुलकर बयान करेंगे ना, आपके जरिए से दूसरों को भी फायदा होगा इंशाल्लाह. ऐसे सेशन में जैसे शेख ने कहा ना, ये कोई जैसे खतीब साहब जुमा में खुतबा करते, आम प्रोग्राम में बयान करते, आप खामोश बैठते, ना वो आप में इन्वॉल्व होते ना आप उनमें इन्वॉल्व होते, वो ये नहीं है. मैं तो चाहता हूं कि आप खुलकर माशाल्लाह कुछ सवाल भी करें आप, तो उसका ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह. मुझे भी और उलमा को भी मालूम होगा, हाँ हमारे नौजवान अपनी जवानी में ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्या सलूशन हो सकता है. इंशाल्लाह अल्लाह के घर में कुछ सलूशन आपको मिल जाएंगे, तो दीगर नौजवानों के लिए भी वो इंशाल्लाह हिदायत और सही रास्ते पर आने का एक सबब बन जाए बिइज़्निल्लाह.